بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران نے نیوکلیئر ڈیل میں تبدیلی کی مانگیں رد کر دیں، کہا امریکہ اور فرانس کو سمجھوتے سے چھیڑ چھاڑ کا کوئی حق نہیں ہے۔ حسن روحانی نے کہا وائٹ ہاؤس مڈل ایسٹ کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتا، مسائل کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ رشیا نے کہا ایران نیوکلیئر ڈیل کا کوئی بدل نہیں ہے، فیڈریکا موگیرینی نے بھی کی سمجھوتے کی تائید۔ مڈل ایسٹ کے امیر ملک ہماری مدد کے بغیر ایک ہفتہ نہیں ٹک سکتے، امریکہ کی حفاظت کے لیے پیسہ دیں، سیریا میں فوجیں تعینات کریں، ٹرمپ کا بیان۔ ٹرمپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اندازوں کے بیچ عادل الجبیر نے کہا قطر کو سیریا میں امریکی موجودگی کے لیے پیسہ دینا چاہیے۔ ایران سے کارگو فلائٹس میں سیریا کو ویپن سسٹمز پہنچائے گئے، امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ، اسرائیل میں ہلچل۔ کشمیر کے پلوامہ میں کانگریس لیڈر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ آسارام باپو کو نابالغ لڑکی کے ریپ پر پوری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا، جودھ پور عدالت کا فیصلہ، 2 ساتھیوں کو 20 سال قید کی سزا۔ گوتم گمبھیر نے دہلی ڈیئر ڈیولز کی کپتانی چھوڑ دی، کہا دباؤ نہیں جھیل پا رہے ہیں، شریاس ایئر نئے کیپٹن۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے نیوکلیئر ڈیل میں تبدیلیوں کے لیے امریکہ اور فرانس کی مانگوں کو رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کو نیوکلیئر ڈیل میں تبدیلیاں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امریکہ اور فرانس نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ وہ سمجھوتے میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، جس کے تحت 2015 کے سمجھوتے میں بعض شرطیں بڑھائی جائیں گی، لیکن ایران کے صدر نے کہا کہ امریکہ کو 7 ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پر بات چیت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بزنس مین قرار دیا اور کہا کہ وہ عالمی سمجھوتوں کے بارے میں تبصرہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سیاست کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے، ٹرمپ قانون کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے، ٹرمپ عالمی سمجھوتوں کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر امریکی کانگریس اور یورپی طاقتیں ایران نیوکلیئر ڈیل کی تباہ کن خامیوں کو دور نہیں کریں گے تو امریکہ ایران پر پھر سے وہ پابندیاں دوبارہ لگائے گا جو سمجھوتے کے تحت ہٹا دی گئی تھیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی دخل اندازیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس خطے کے ملکوں کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ ایران کے تبریز شہر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حسن روحانی نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں آج جو بھی مسائل پائے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر غلط بیانات اور خیالات کی وجہ سے ہیں، اور بعض ملکوں کا خیال ہے کہ جارح اور قابض نظام یعنی اسرائیل دوسرے ملکوں کے عوام پر ہمیشہ مسلط رہنا چاہیے۔ حسن روحانی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ مڈل ایسٹ کے بعض بے حد امیر ملکوں کو امریکہ کی حفاظت کے لیے پیسہ دینا چاہیے اور انہیں اپنے سپاہیوں کو سیریا میں تعینات کرنا چاہیے۔ روحانی نے کہا کہ امریکہ اور فرانس کے لیڈرز نے ایران نیوکلیئر ڈیل میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں پر زور دیا ہے، حالانکہ سمجھوتے پر دستخط کرنے والے کئی ملکوں نے بار بار امریکہ کے ارادوں پر اعتراض کیا ہے۔ حسن روحانی نے ٹرمپ سے کہا کہ آپ اور یورپ کے ایک ملک کے لیڈر اس سمجھوتے کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں جس سے کئی فریقوں نے اتفاق کیا تھا، کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ روحانی نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سمجھوتا دنیا کے لیے بہتر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ اگر امریکہ ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلتا ہے تو ایران بھی سمجھوتے کو چھوڑ دے گا۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس سے بات چیت کرتے ہوئے جواد ظریف نے کہا کہ اگر ٹرمپ ایران کے خلاف پابندیاں لگاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ بنیادی طور پر اس سمجھوتے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس صورت میں ایران اپنی سرگرمیوں کو محدود کرنے کا پابند نہیں رہے گا۔
रशिया ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील का कोई बदल नहीं है। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि हम नहीं समझते कि समझौते का कोई दूसरा बदल है। रशिया इस समझौते को बरकरार रखने का हामी है। क्रेमलिन के तर्जुमान ने सवाल किया कि क्या एक नए समझौते पर पहुंचना मुमकिन होगा। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर डील कई मुल्कों की सख्त मेहनत का नतीजा है। क्या इस काम को दोबारा दोहराना मुमकिन है? ये असल सवाल है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील फायदेमंद साबित हुई है और उसे बचाना चाहिए। उन्होंने सीरिया के मुस्तकबिल के बारे में ब्रुसेल्स में एक आलमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हुए कहा कि मुस्तकबिल में क्या होगा उससे हटकर आज ये समझौता काम कर रहा है और उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने एक दिन पहले व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील पर फिर से बातचीत होनी चाहिए और एक नया समझौता तैयार होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह बात कोई नहीं जानता कि वो 12 मई के बाद क्या करने वाले हैं। ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील में खामियां दूर करने के लिए 12 मई की डेडलाइन दी थी। उन्होंने इस समझौते को बहुत बुरी डील करार दिया। ट्रंप और मैक्रोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो न्यूक्लियर डील को खत्म कर सकते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएगा तो ईरान भी शर्तों से आजाद हो जाएगा और यूरेनियम को अफजुदा करना फिर से शुरू कर देगा। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के बाद जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी अमेरिका का दौरा करने वाली हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप से ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत करेंगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट के बाद बहुत ज्यादा अमीर मुल्कों को अमेरिका की हिफाजत के लिए पैसा देना चाहिए और सीरिया में अपने सिपाहियों को तैनात करना चाहिए। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह मुल्क अमेरिका की मदद के बगैर एक हफ्ता नहीं टिक सकते। ट्रंप ने कहा कि इस इलाके के बाद मुल्क हैं जिनमें बहुत ज्यादा अमीर मुल्क भी शामिल हैं। वो अमेरिका के बगैर और किसी हद तक फ्रांस के बगैर टिक नहीं सकते। हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं, अब उन्हें आगे आना चाहिए और खर्च उठाना चाहिए। ट्रंप ने इन मुल्कों का नाम नहीं लिया। ऐसा मालूम होता है कि ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने के अपने फैसले को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि ईरान को खित्ते में उसके असर और रसूख को बढ़ाने से रोका जाए। ट्रंप ने कहा कि जहां तक सीरिया का ताल्लुक है, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मैं इस बात को पसंद करता हूं कि हमारे बहादुर सिपाहियों को वतन वापस बुलाया जाए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने और एमेनुएल ने इस हकीकत के बारे में बातचीत की है कि हम ईरान को खुला मैदान नहीं दे सकते। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान में किस मुल्क की तरफ इशारा किया गया, इस बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी के लिए कतर को पैसा देना चाहिए। आदिल अल जुबैर के हवाले से सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने कहा कि कतर को सीरिया में अमेरिका की फौजी मौजूदगी के लिए पैसा देना चाहिए और अपने सिपाहियों को भेजना चाहिए, इससे पहले कि अमेरिका कतर की हिफाजत करना बंद कर दे जहां अमेरिका का फौजी अड्डा भी है। आदिल अल जुबैर ने कहा कि अगर अमेरिका कतर से अपने सिपाहियों को हटा ले तो कतर की हुकूमत एक हफ्ते के अंदर गिर जाएगी। कतर में कोई 9000 से ज्यादा अमेरिकी सिपाही तैनात हैं। कतर में अमेरिका का एक फौजी अड्डा है जहां अमेरिका के कई जहाज तैनात हैं। इससे पहले अप्रैल के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका के सिपाही सीरिया में रहे तो उसे खर्च उठाना पड़ेगा। ईरान के काला ओहदेदार ने कहा कि सीरिया में बाज़ दूसरे मुल्कों की फौजी मौजूदगी का मकसद दहशतगर्दों को फिर से सर उठाने में मदद करना। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने रशिया के सूची शहर में वहां के ओहदेदारों के साथ मुलाकात करते हुए ये बात कही। सूची में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 100 से ज्यादा मुल्कों के ओहदेदार हिस्सा ले रहे हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बाज़ मुल्क आलमी कानून को तोड़ते हुए और फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं और सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। पुतिन ने ब्लैक सी के साहिली शहर सूची में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए दिए गए बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाज़ मुल्क एकतरफा पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जिससे आलमी सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने में जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें रुकावटें पेश आ रही हैं। सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि उसने अल हूसियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ सालेह समद को हलाक किया है। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ट्विटर पर कहा कि सऊदी अरब ने कामयाबी के साथ अंसारुल्लाह तहरीक के सीनियर ओहदेदार को निशाना बनाया है। प्रिंस खालिद ने कहा कि उनके भाई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस हमले की निगरानी की। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब हाल ही में समद ने सऊदी अरब के अंदर मिसाइल हमले तेज करने की धमकी दी थी।
امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہا کہ ایران سے کارگو فلائٹس کے ذریعے سیریا میں کچھ فوجی سامان پہنچایا گیا ہے جو ویپن سسٹم ہو سکتا ہے. ان ویپن سسٹمز کا استعمال سیریا کی بشار الاسد کی فوجیں یا ایرانی فورسز کر سکتی ہیں. CNN نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی. امریکہ اور اسرائیل دونوں کو اس سپلائی پر کافی تشویش ہے. بتایا گیا کہ سیریا میں ایسے ویپن سسٹمز کی سپلائی کوئی عام بات نہیں ہے. یہ خبریں ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حال ہی میں امریکہ اور اتحادی ملکوں نے سیریا میں ہوائی حملے کیے ہیں. حالیہ دنوں میں سیریا میں ایران کے رول کے بارے میں اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ کافی بڑھ گیا ہے اور تیل ابیب میں تازہ انٹیلیجنس رپورٹس پر ہلچل مچی ہوئی ہے. رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے حال ہی میں اشارہ دیا تھا کہ ماسکو سیریا میں S-300 میزائل ڈیفنس سسٹم دے سکتا ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگو لیبرمان نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ وہ سیریا میں رشیا کے میزائل ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر دے گا. انہوں نے وارننگ دی کہ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کا اسرائیل کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کیا عمران خان کی تیسری شادی بھی ٹوٹنے والی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شرجی اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. ایران نے نیوکلیئر ڈیل میں تبدیلی کی مانگیں رد کر دیں. کہا امریکہ اور فرانس کو سمجھوتے سے چھیڑ چھاڑ کا کوئی حق نہیں ہے. حسن روحانی نے کہا وائٹ ہاؤس مڈل ایسٹ کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتا. مسائل کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے. رشیا نے کہا ایران نیوکلیئر ڈیل کا کوئی بدل نہیں ہے. فیڈریکا موگیرینی نے بھی کی سمجھوتے کی تائید. مڈل ایسٹ کے امیر ملک ہماری مدد کے بغیر ایک ہفتہ نہیں ٹک سکتے. امریکہ کی حفاظت کے لیے پیسہ دیں, سیریا میں فوجیں تعینات کریں. ٹرمپ کا بیان. ٹرمپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اندازوں کے بیچ. عادل الجبیر نے کہا قطر کو سیریا میں امریکی موجودگی کے لیے پیسہ دینا چاہیے. ایران سے کارگو فلائٹس میں سیریا کو ویپن سسٹمز پہنچائے گئے. امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ. اسرائیل میں ہلچل. کشمیر کے پلوامہ میں کانگریس لیڈر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. آسارام باپو کو نابالغ لڑکی کے ریپ پر پوری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا. جودھ پور عدالت کا فیصلہ. 2 ساتھیوں کو 20 سال قید کی سزا. گوتم گمبھیر نے دہلی ڈیئر ڈیولز کی کپتانی چھوڑ دی. کہا دباؤ نہیں جھیل پا رہے ہیں. شریاس ایئر نئے کیپٹن. جائرکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب کی معاشی اور ترقیاتی کونسل نے پرائیویٹائزیشن کے ایک پروگرام کو منظوری دی ہے. یہ پروگرام ملک کے ویژن 2030 منصوبے کا اہم حصہ ہے جس کا مقصد سعودی عرب کے شہریوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرنا, ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دینا اور معاشی ترقی کو تیز کرنا ہے. ملائیشیا کی پولیس نے فلسطینی سائنٹسٹ فادی حسن البطش کے قتل کی تحقیقات میں اہم سراغ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا. ملائیشیا کے انسپیکٹر جنرل پولیس محمد فوزی ہارون نے کہا کہ حملہ آوروں نے جس موٹر سائیکل کا استعمال کیا تھا اسے ڈھونڈ لیا گیا ہے اور کئی دوسرے ثبوت بھی جمع کیے گئے ہیں جن کی روشنی میں تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی اسکولوں کو گرانا جنگی جرم کے برابر ہے. ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اسرائیل نے مغربی کنارے اور دوسرے علاقوں میں کئی عمارتوں کو گرایا ہے جن کا استعمال اسکولوں کے طور پر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے فلسطینی بچوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. افغانستان کے طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ موسم بہار میں ایک نئی اسٹریٹجی پر عمل کریں گے جس کے تحت امریکی سپاہیوں کو ہلاک کیا جائے گا یا پھر انہیں پکڑ لیا جائے گا. ایک بیان جاری کرتے ہوئے طالبان نے الخندق نامی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا جس کے دوران امریکی سپاہیوں, ان کے انٹیلیجنس ایجنٹس اور افغان سپورٹرز کو نشانہ بنایا جائے گا. حالیہ مہینوں میں افغانستان میں طالبان کی سرگرمیاں کافی بڑھ گئی ہیں اور وہاں پر آئیسس بھی کافی سرگرم ہے.
इंडोनेशिया में तेल के कुएं में आग लग गई जिससे कम से कम 15 लोग हलाक हो गए और 40 जख्मी हुए। यह हादसा आज सूबे में पेश आया। नेशनल डिजास्टर एजेंसी के तर्जुमान ने बताया कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कोरिया को अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ना होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मसले पर नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत की जाएगी। ट्रंप ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद यह बात कही। ट्रंप कुछ दिन बाद किम जोंग उन से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने इस मौके पर किम जोंग उन को एक बाइज्जत आदमी करार दिया। हालांकि हाल तक उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर के लिए सख्त जबान इस्तेमाल की थी और उनका मजाक भी उड़ाया था। खबर है कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कैप्टन और सियासतदान इमरान खान की तीसरी शादी भी टूट सकती है। पाकिस्तान के बाज़ मकामी अखबारात में खबर छपी है कि तीसरी बीवी बुशरा मानिका के साथ भी इमरान खान के झगड़े शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार डेली उम्मत ने बताया कि इमरान खान के घर में बुशरा मानिका के बेटे के रहने की वजह से बाज़ मसाइल पैदा हुए। इमरान खान ने फरवरी के महीने में बुशरा मानिका के साथ शादी की थी और उन्हें अपनी रूहानी गुरु बताया था। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बुशरा मानिका इमरान खान के शाहाना घर जिसे बनीगाला कहा जाता है वहां उनके पालतू कुत्तों से खुश नहीं थी और बाज मसाइल की वजह से वो तहरीक इंसाफ के लीडर के घर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई हैं। इमरान खान ने इससे पहले इन खबरों को गलत बताया था कि उनके पालतू कुत्ते शेरों की वजह से घर में कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। अखबार में कहा गया कि इमरान खान की बहनें घर में कुछ रिनोवेशन के काम करा रही थी जिससे बुशरा खुश नहीं थी। सोशल मीडिया पर इस खबर के सामने आने के बाद तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इन खबरों पर इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया और न ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम अखबारात या चैनल्स पर इस सिलसिले में अब तक कोई खबर आई है। अब बात करते हैं इंडिया की। एक ऐसे वक्त जब कठुआ और उन्नाव में रेप केसेस की वजह से मुल्क भर में गुस्सा पाया जाता है और इन मामला से एक खास फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं। जोधपुर की एक अदालत ने खुद साख्ता स्वामी आसाराम को एक नौजवान लड़की के साथ ज्यादती पर जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई। ऐसा इल्जाम है कि आसाराम ने 2013 में राजस्थान के जोधपुर शहर के करीब अपने आश्रम में अपनी एक भक्त का रेप किया था। खुसूसी अदालत ने इस केस में दो दूसरे मुल्जिमीन को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई और 2 मुल्जिमीन को बरी कर दिया। जब फैसला सुनाया जा रहा था आसाराम रो पड़ा। यह अदालत जोधपुर जेल से काम कर रही थी जहां खुद साख्ता स्वामी अपनी गिरफ्तारी के बाद पिछले 55 महीनों से जेल में था। आसाराम पर इल्जाम है कि उसने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ताल्लुक रखने वाली 16 साल की लड़की का रेप किया था। उसे सितंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। आसाराम ने यह इल्जाम कबूल करने से इनकार कर दिया। वो ऊंची अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। इस दौरान फैसले के बाद मुतासरा लड़की के वालिद ने कहा कि मुझे इंसाफ मिलने पर खुशी है। हमें अदालत पर भरोसा था और हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिला। इस फैसले के मौके पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बाज़ दूसरी रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ये रेप केस में किसी बाअसर हस्ती को सजा देने का हालिया अरसे में दूसरा मामला है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह को ऐसे ही केस में मुजरिम करार दिया गया था और जेल भेज दिया गया था। खुसूसी अदालत के जज मधुसूदन शर्मा ने यह फैसला सुनाया। जिन दूसरे मुल्जिमीन को मुजरिम करार दिया गया उनमें शिल्पी और शरद शामिल है। इसके अलावा प्रकाश और शीबा को बरी कर दिया गया। अदालत के फैसले के मुताबिक आसाराम को उसकी मौत तक जेल में रखा जाएगा। मुतासरा लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने 15 अगस्त 2013 की रात उन्हें अपने आश्रम में बुलाया और उनका रेप किया। यह बच्ची आसाराम के आश्रम में पढ़ रही थी। 77 साल आसाराम के बारे में कहा जाता है कि उसने साबरमती के किनारे एक छोटी सी कुटिया से अपनी जिंदगी शुरू की और 10,000 करोड़ रुपए का एम्पायर बनाया जिसमें हिंदुस्तान और दुनिया के कई दूसरे मुल्कों में फैले हुए 400 आश्रम भी शामिल हैं। औरतों के लिए काम करने वाली कई तंजीमों के नुमाइंदों ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कांग्रेस लीडर को मिलिटेंट्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इस हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी पटेल अपनी कार में सफर कर रहे थे जब मिलिटेंट्स ने गोलियों की बौछार कर दी। जख्मी गार्ड्स की पहचान इम्तियाज अहमद और बिलाल अहमद की हैसियत से की गई है जिनका इलाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर कांग्रेस लीडर के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और इससे सिर्फ मुतासरा खानदान को तकलीफ दी जा सकती है। हमले के बाद कांग्रेस लीडर को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अब तक किसी भी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि अवाम के हर तबके को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। गुलाम नबी पटेल का ताल्लुक PDP से भी रहा। उन्होंने कई बार पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस में हिस्सा लिया।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को 7 महीने बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने कफील को जमानत दी क्योंकि इस केस में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। गौतम गंभीर ने दिल्ली डेयरडेविल्स के कैप्टन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। आईपीएल में अब तक दिल्ली की टीम का मुजाहरा बहुत खराब रहा है। इससे पहले गंभीर ने 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की और उनकी कप्तानी में टीम ने 2 बार टाइटल जीता था। इस आईपीएल में 36 साल गंभीर ने अब तक अपनी 5 इनिंग्स में सिर्फ 85 रन बनाए हैं। गंभीर आईपीएल की तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर है। उन्होंने 152 इनिंग्स में 4217 रन बनाए हैं। गंभीर की जगह श्रेयस अय्यर को दिल्ली का कैप्टन बनाया गया है। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। उसने अब तक सिर्फ 1 जीत हासिल की है। फिरोजशाह कोटला मैदान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गंभीर ने कहा कि यह मेरा खुद का फैसला है। मैंने टीम की मुनासिब खिदमत नहीं की। मुझे इस टीम की कप्तानी का कोई हक नहीं है। मेरा ख्याल है कि यह सही वक्त पर किया गया फैसला है। गंभीर ने कहा कि वो दबाव को नहीं झेल पा रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान ने न्यूक्लियर डील में तब्दीली की मांगें रद्द कर दी। कहा अमेरिका और फ्रांस को समझौते से छेड़छाड़ का कोई हक नहीं है। हसन रूहानी ने कहा व्हाइट हाउस मिडिल ईस्ट के बारे में फैसले नहीं कर सकता। मसाइल के लिए इस्राइल जिम्मेदार है। रशिया ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील का कोई बदल नहीं है। फेडरिका मोगेरिनी ने भी की समझौते की ताईद। मिडिल ईस्ट के अमीर मुल्क हमारी मदद के बगैर 1 हफ्ता नहीं टिक सकते। अमेरिका की हिफाजत के लिए पैसा दें, सीरिया में फौजें तैनात करें, ट्रंप का बयान। ट्रंप का इशारा किस तरफ है? अंदाजों के बीच आदिल अल जुबैर ने कहा कतर को सीरिया में अमेरिकी मौजूदगी के लिए पैसा देना चाहिए। ईरान से कार्गो फ्लाइट्स में सीरिया को वेपन सिस्टम्स पहुंचाए गए। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट। इस्राइल में हलचल। कश्मीर के पुलवामा में कांग्रेस लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। आसाराम बापू को नाबालिग लड़की के रेप पर पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। जोधपुर अदालत का फैसला। 2 साथियों को 20-20 साल कैद की सजा। गौतम गंभीर ने दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी छोड़ दी। कहा दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। श्रेयस अय्यर नए कैप्टन। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।